हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे फॉर our क्लाउड एंड DevOps लर्निंग सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले शेल स्क्रिप्टिंग विद फुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। शेल स्क्रिप्टिंग DevOps इंजीनियर का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है बिकॉज ऑटोमेशन इक्वल टू स्क्रिप्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द शेल स्क्रिप्ट? तो शेल स्क्रिप्ट बेसिकली कमांड्स का कलेक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली रन होते ही इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स अगेन एंड अगेन एंड स्क्रिप्ट्स यूज करके ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, बैकअप, स्केलिंग, ये सब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से होता है। The shell is talk to your operating system, then automation using shell script, and simple, it consists a set of commands to perform a task. Bus, that is the shell script. So basically, the someone asks you what is a shell. So it's talk to your operating system. Let's say you want to create a file, and what do you do in your Windows? So Windows has a very good GUI. GUI is a graphical user interface. But most of the times when you are working on software organization, you don't have graphical user interface for your server. So if you have issue on your production server, you don't have a GUI for navigate through the folder. To understand what is the issue, so you have to do it through some command line way. Okay. So this command line way through which you talk to your operating system. There are nothing but your shell commands. So in Linux, the way that to talk to your operating system is using your shell commands. Most of the shell commands are same for most of the distributions, not a operating system. So that's why today's we'll try to see what are some of the popular shell commands and distributions are nothing but the vendors that are providing this Linux operating system. So Red Hat is the vendor that provides the Linux operating system. Like that, Ubuntu is a vendor that provides the Linux operating system. So here start run this command. तो हम कुछ इसमें कमांड देखेंगे। तो हम कमांड देखेंगे s-ltr। तो तो ये कमांड क्या करता है बेसिकली? So what does this ls-ltr does? It provide info like it's starting with d. That means it's a directory. If it's not starting with d, that means that is not a file. After that, you see who is the owner of this file, which group owns this file, and what is the size and timestamp and the name of the file. तो हम इसे प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो हम देखते हैं Ubuntu में ls, that is it shows the current list of entities here. Demo script, devops, git demo, these are the directories. A.txt, that is file. Demo.sh, it's .sh is the script. Devops2, it's the directory. Example.sh is also script, but is nothing but a file, and rest of the three are the directories. Okay, so we create one directory here. The command is mkdir and scripts. We check create or not. Yes, it's created. Okay, तो हम इसके अंदर जाएंगे cd scripts। तो हम इसमें तो एक लगाते हैं हम एक। ओके, तो हम इसमें जाते हैं DevOps में। ओके, तो हम कमांड बोल रहे थे ls dash ltr। So it shows the
this type of structure. Okay, तो स्टार्टिंग में इसके डी है, तो इससे कंफर्म हो जाता है ये डायरेक्टरी है, दैट इज अ फोल्डर। एंड जिसके स्टार्टिंग में डी नहीं है वो फाइल्स है, इसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। और ये परमिशंस है जो आज हम सीखने वाले हैं, परमिशंस क्या होती है लिनक्स में। और जो फर्स्ट है दैट इज हु इज ओनर ऑफ दैट फाइल, which group it belongs, what is the size and the timestamp and the file name. Okay, but if you just want to create a file, touch file, most of the times you want to create a file, you want to write content inside the file. So for that we use the vim command. So using vim you cannot only create a file, but you can create a file and write inside the file. Okay, तो इसके बाहर आते हैं, जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसमें जाते हैं, स्क्रिप्ट्स। ओके, तो यूजिंग टच कमांड हम टेस्ट डॉट एस एच फाइल बनाते हैं। ओके, इट्स क्रिएटेड। एंड वी ऑल्सो, तो हम विम कमांड यूज करके भी फाइल बना सकते हैं, दैट इज अ टेस्ट वन डॉट एस एच। ओके, बट विम कमांड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके अंदर आपको राइट करना होगा तो इंसर्ट आई कीवर्ड प्रेस करना होता है, तो इधर इंसर्ट दिखता है। ओके, तो हम इसके अंदर हमारा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अभी हम खाली इको इको प्रिंट करेंगे इसमें, इको, और मेरा ज्ञानेश्वर, और ये सेव करने के लिए आपको फिर से एस्केप कीवर्ड यूज करना होगा, कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क, इससे आपका फाइल सेव होगा। ओके, so Linux is not a straightforward, because when you open the file in Linux will ask you, do you want to read the file, do you want to write a content into the file. So using escape and tell Linux that I want to content inside the file, so click on I, that is the insert। हमने अभी चेक किया, I करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ओके, दैट इज vim test1.sh। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ./test1.sh। बट इशू क्या आ रहा है, ये देखो, bash ./test1.sh परमिशन डिनाइड। तो इसको हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी, जो आज हम देखने वाले हैं, दैट इज अ chmod कमांड यूज करेंगे हम। मैं आपको chmod कमांड बताता हूँ क्या है मोस्टली। ओके, इट इज अ chmod। इसमें क्या होता है, हमें एवरीबडी पीपल्स को हमें एक्सेस देना होता है, तो हम 777 यूज करते हैं। 777 मतलब तो इसका भी डिफरेंशिएट होता है, वो ऐसे है कि
ओके। तो 4 होता है, ये रीड के लिए होता है। 2 होता है, ये होता है राइट के लिए। और 1 होता है एग्जीक्यूट के लिए। टोटल 7 होता है। ओके। इसमें फर्स्ट होता है यूजर, देन ग्रुप, एंड देन what are you given to that file, that is a permissions. Okay, तो हम अभी परमिशन देखेंगे। तो इसका पूरा मेरा मिला करें ट्रिप 7 होता है। स्क्रिप्ट देखते हैं और इसको परमिशन देते हैं। तो परमिशन कैसे देनी है, chmod 777 test1.sh। परमिशन दी हमने। तो हमें स्क्रिप्ट रन करनी है, इसके हमने 2 वेज, मैंने फर्स्ट वे तो ऑलरेडी बता दिया है, डॉट स्लैश यूज करते हैं हम। सेकंड वे में आप sh test1.sh ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो ज्ञानेश्वर मड की प्रिंट होके आया है आउटपुट में। ओके, और नेक्स्ट कमांड है हमारी nproc, जो कि आपको काउंट बताती है, सीपीयू काउंट। इस मशीन में 8 सीपीयू है। ओके, so you need to understand what is a shell scripting in Linux. So is a process of automating your day-to-day activities or regular activities on your Linux computer. So first of all, the write a shell script, what is the basic thing required, that is you need to have a file. So inside your file you write a script, and I am writing the shell script file. So extension is .sh जो हमने अभी देखा। Okay. Similar to if you are writing the Python file, it will be a service.py like that. अब ऐड कर सकते हो, दैट इज आप जावा में कोड करोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे तो उसका जावा का एक्सटेंशन आएगा, और शेल स्क्रिप्ट में .sh एक्सटेंशन होता है स्क्रिप्ट का। तो आपको यू वांट टू डिटेल्स ऑफ एनी कमांड, यूज द मैन कमांड। तो मैंने मैन कमांड चलाई टच के लिए, टच इज द लिनक्स कमांड। ओके, तो ये देखो जो टच का टोटल डिटेल्स है, तो इसमें आ जाता है नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन, सब इसका डेटा
इसके रिलेटेड है, टच कमांड के रिलेटेड, जो इस मैन कमांड में आ जाता है। तो मैं इसको क्वाइट करते हैं क्यू, यूजिंग अ क्यू कीवर्ड आप बाहर आ सकते हो। देन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टच वर्सेस वीम, जो हमने दो कमांड यूज करी अभी, दैट इज द टच एंड वीम। वीम ये तो लिनक्स में एडिटर है, बट एक वीम एज अ कमांड भी यूज कर सकते हैं हम। तो डिफरेंस क्या है, टच इज यूजफुल फॉर क्रिएट अ फाइल एंड vim is useful for write inside the file. So that is the difference. It also create a file, but in automation you will need to use the touch command, not a vim command. Case A, for example, anyone said, Nansho, create a 1000 of files for a random reason. You cannot use the vim inside in your script because vim opens a file. What happens if the files is open? Then its problem occurs. कैसे प्रॉब्लम occur होगा? मल्टीपल फाइल्स ओपन होंगी तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ओके, दैट विल बी द रीजन। सो यू, तो हमें क्या करना है, उस टाइम टच कमांड यूज करना है। तो अब हमें शेल स्क्रिप्ट कैसी लिखनी है ये देखते हैं हम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है शेल स्क्रिप्ट का और कहाँ से स्टार्ट होती है शेल स्क्रिप्ट, वो पहले देखते हैं। तो इसमें बेसिक सिंटैक्स ये आता है, हैश, एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्लैश बीन, स्लैश, ओके। और इसमें आता है मोस्टली बैश होता है, एसएच होता है और डैश होता है। ये क्या है, तीनों एग्जीक्यूटेबल्स है। These are different executables of your shell scripts. That is a bash, sh, dash. But मोस्टली यूज कौन सा होता है, बैश यूज होता है मोस्टली। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लैश बीन स्लैश sh स्लैश बीन डैश। इसका डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में। तो डिफरेंस इज दैट previously both of the same because slash sh was redirecting using the linking concept. Okay, it's redirect using linking concept to the slash bin bash. तो ये लिंक इससे, but now it is not the same because some of the operating system decided to use a dash as a default. So your script might not be execute if if you are writing in bash scripting on a machine where dash is default. So that is the difference. तो हम मोस्टली क्या यूज करेंगे, हैश, नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्लैश bin स्लैश बैश, यही यूज करेंगे हम। जो स्टार्टिंग के
स्टार्टिंग का हैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, और स्लैश, ये तीन, इसको शीबैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शीबैंग। तो हम अब कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो आपको और भी आइडिया आएगा एक्चुअली ये क्या होता है। तो मैन डॉट टच हुआ, स्क्रिप्ट के डायरेक्टरी के अंदर है हम। तो हम यहाँ फाइल बनाते हैं यूजिंग बीम कमांड, चेक डॉट एस एच। इसमें आए हम इंसर्ट किया, आए कीवर्ड यूज करके इधर इंसर्ट लिख कर आया। ओके, तो हम अब इंसर्ट करेंगे स्क्रिप्ट। करके इंसर्ट करेंगे हम। तो हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। देन लिखेंगे हम इको ज्ञानेश्वर मुड़गे। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं यूजिंग हैश। टुडेज डेट एंड टाइम, और कमांड क्या है उसकी, डेट। तो हम अभी सेव करेंगे, एस्केप कोलन डब्ल्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो हम इसको रन करेंगे, मैंने पहले बताया इसके दो वे से रन करने के लिए। आप ये यूज कर सकते हो डॉट स्लैश चेक डॉट एस एच, और सेकंड वे इसका एस एच चेक डॉट एस एच। ये दो वेज है स्क्रिप्ट रन करने के लिए। ओके, तो हम ये करते हैं चेक डॉट एस एच, बट हमने परमिशन नहीं दी है, तो हमें पहले परमिशन देनी पड़ेगी। तो जो हमने सीखा है 777, जो कि परमिशन देता है everybody, to grant the permission to everybody. Everybody means that is the user, then group, then permission. तो हम उसको परमिशन देंगे यूजिंग chmod कमांड, chmod 777 check डॉट एस एच। परमिशन मिल गई, रन कर दिया chmod डॉट एस एच, नहीं chmod नहीं, फाइल नेम चेक डॉट एस एच। ये देखो ज्ञानेश्वर मडगे
and the today's date and time, Tuesday, November 25, 06/08/27 IST time zone to 2025। ओके, तो हमने फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट लिख दी। इजी है। तो अब हम सेकंड शेल स्क्रिप्ट देखेंगे। That is a vim command use sample.sh insert shebang bash। ओके, दे तो हम इसमें क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले फोल्डर। तो इधर कम लिख देता हूँ जो कि प्रिंट होके आएगा, क्रिएट अ फोल्डर। कमांड mkdir ज्ञानेश्वर। that then cd ज्ञानेश्वर then echo creating some files। then तो फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड यूज करेंगे। टच .log .text। ओके, देन हमें इसको एग्जिट करेंगे, एक्सेप्ट कीवर्ड यूजिंग कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो हम अभी इसको रन करेंगे। इसके पहले हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी, हम पहले ही परमिशन दे देते हैं तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। chmod 777 sample.sh। आप बोलते होंगे हर बार 777 ही क्यों एग्जीक्यूटिबल परमिशन दे रहे हैं। तो मैं रीड की भी दे रहा हूँ, राइट की भी दे रहा हूँ और एग्जीक्यूटेबल की भी दे रहा हूँ, इसीलिए 777 उसका कैलकुलेशन आ रहा है। तो हम इस बार इसको 444 देंगे, देखते हैं क्या आता है। sample.sh। ओके, तो हम इसको अभी रन करेंगे। sample.sh। तो देखो परमिशन डिनाइड, बिकॉज इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन ही नहीं मिली। तो हमें इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देनी पड़ेगी। देन chmod 777। ये देखो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम यूजिंग, देखो 44। तो 4 क्या है हमारा, रीड है और ए भी रीड है। तो ऑल यूजर को भी रीड, ग्रुप को रीड और परमिशन भी रीड। तो
तो इसको परमिशन डिनाइड करके एरर आ रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी 777 की परमिशन दे देते हैं। तो ऑल परमिशन ग्रांटेड करके chmod 777, देन फाइल नेम sample.sh। ओके, इसको परमिशन मिली तो हम इसको रन करते हैं। तो हम इसको रन करते हैं sample.sh। ये देखो, क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट अ सम फाइल्स। तो हमें तो बस यही दिखा, क्रिएट अ फोल्डर और क्रिएट अ सम फाइल्स, बट हम एक्चुअली में जाके देखेंगे ये एग्जीक्यूट हुई क्या नहीं। ओके, तो हम इधर एरेस करते हैं। ये देखो, ज्ञानेश्वर नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हुआ। पहले हम इसको देखते हैं, कैट। आपको ओपन करना है स्क्रिप्ट, तो आप हर बार विम कमांड यूज नहीं कर सकते, तो हमें अब इधर कैट कमांड यूज करनी पड़ेगी। कैट स्क्रिप्ट नेम sample.sh। इसमें देखो एमपी डायरेक्टरी ज्ञानेश्वर, जो मैंने BLS करूँगा तो ये देखो ज्ञानेश्वर क्रिएट होगी। तो हम इसके अंदर जाएंगे, cd ज्ञानेश्वर, इसके अंदर आए, ls किया, ये देखो nya.log और nya.txt क्रिएट हो चुकी है। तो हमारी ये भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल हो गई है और अच्छे से वर्क कर रही है विदाउट एनी एरर। तो अगली कमांड है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड, तो हिस्ट्री कमांड क्या है एक्चुअली, जब से मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है, कौन से कमांड यूज किए हैं मैंने, बेसिक ऑल कमांड्स जो कि इधर आते हैं। एक्चुअली कि 675 कमांड्स आर देयर यूजिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कमांड क्या होता है, इट शोज ऑल द कमांड्स टू यू एंटर। तो अब हमें देखना है एरेस करके cd, तो हमारे स्क्रिप्ट्स फोल्डर में जाएंगे एलएस। तो कितनी स्क्रिप्ट बनी, check.sh, sample.sh। तो हम ये और एक स्क्रिप्ट देखेंगे। तो हम उसमें क्या सीखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन शेल स्क्रिप्ट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। जब आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वर्क करोगे तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके कैसे एक शेल स्क्रिप्ट बना सकते हो, तो हम वो देखेंगे पहले। तो नाम ही ऐसे देते हैं, बेस्ट विम बेस्ट प्रैक्टिस practice.sh। तो इंसर्ट किया, अंदर आए, तो इसमें हमें कुछ मेटा डेटा और फाइल लिखना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट लाइन तो कॉमन ही कमांड है, बेसिकली कमांड नहीं बोल सकते, सिंटैक्स है, दैट इज इसको हम शीबैंग कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बीन स्लैश बैश एंटर। तो ऑथर ज्ञानेश्वर मडके, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है उसका नाम, बाद में डेट, जो आज डेट है
ट्यूसडे नवंबर 25 टाइम हुआ है 18। डेट हुई ऑथर डेट, और आपका सब्जेक्ट क्या है आप लिख सकते हो द स्क्रिप्ट्स फॉर चेक नोड हेल्थ। और इसका वर्जन क्या है, इसको अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका वर्जन क्या है, तो इसका वर्जन V1 है। अब रैंडम केस कुछ भी वर्जन दे सकते हो, मैंने V1 दे दिया है, ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, सेट कमांड यूज करेंगे, जो कि डिबग मोड के लिए सेट कमांड यूज होती है मोस्टली। सेट -x एंटर, then we use the command df-h, then I use the command free-g, then I use the command nproc। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, नोड हेल्थ चेक करेंगे इसकी। अब सिस्टम पे क्या है एक्चुअली, तो स्किप करेंगे, कोलन देंगे, WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो इसको भी हमें परमिशन देनी पड़ेगी, chmod 777 बेस्ट प्रैक्टिस .sh। तो हम इसको रन करेंगे, sh बेस्ट प्रैक्टिस .sh। तो ये देखो, फर्स्ट कमांड उसका आउटपुट, देन सेकंड कमांड उसका आउटपुट, और जो कि थर्ड कमांड है nproc उसका आउटपुट। दिस इज द वेल स्ट्रक्चर्ड वे आप लिख सकते हो, राइट कर सकते हो शेल स्क्रिप्ट। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन शेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हम पाइप कमांड का भी यूज देखेंगे, जो कि पाइप कमांड ऐसी होती है। तो कमांड होगी PS-EF and the pipe command is here. This is the pipe command, and use the grep to search I want to search Dinosaur or something, the problem statement, according to the problem statement। तो आप this is the command and this symbol is pipe command। pipe command क्या होता है, it sends the output of first command to the second command। it sends the output of first command to second command, that is the pipe। फॉर एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा। तो व्हाट इज grep command, what is pipe command,
ओके, तो हम क्या करेंगे, ये चलाते हैं PS F। तो मोस्टली कौन कौन से UID, कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं इस कंप्यूटर में, ये सब इधर दिखता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो डॉकर रिलेटेड UID है और PID है वही चेक करने हैं बस। तो मैं क्या करूँगा, यूजिंग पाइप कमांड वो देख पाऊँगा। तो हम कैसे देख सकते हैं, PS-EF पाइप कमांड, देन grep सर्च डॉकर और एंटर। ये देखो, तो मेरे सिस्टम में अभी डॉकर चल रहा है, उसका PID ये है, उसकी साइज इतनी है और ये टाइम है और एक कमांड लाइन है, उसका ये पाथ है ऑलरेडी। ओके, दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, इट सेंड्स द आउटपुट ऑफ फर्स्ट कमांड टू द सेकंड कमांड। तो पहले इसने क्या करा, ये नेविगेट किया ऑल द प्रोसेसेस एंड उसमें से क्या निकाला, जो डॉकर रिलेटेड एंटिटी इधर वही आपको शो किया बस। दैट इज द यूज ऑफ पाइप कमांड। एंड ग्रेप कमांड का यूज क्या है, इसने फाइंड किया, जो मैंने बोला डॉकर फाइंड करो, तो उसने फाइंड कर दे दिया। ओके, तो मैं एक स्क्रिप्ट लिखेंगे इसके ऊपर भी, आपको और भी आसान होगा। तो विम sample1.sh insert I जो हमने सीखा है, हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बीन स्लैश बैश, फर्स्ट लाइन। तो मोस्टली मैंने क्या लिखा, इधर 1 to 10 नंबर लिख दिए, एज ए इको प्रिंट कर दिए, इको 1, इको 2, इको 3, इको समथिंग मैंने 11 किया, इको समथिंग मैंने 12 किया, समथिंग मैंने 13 किया। ओके, तो मैंने शेल स्क्रिप्ट लिखी और मुझे सेव करनी है। एस्केप कीवर्ड यूज़ किया, कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी, chmod 777 sample1.sh एंटर। तो हम अभी इसको रन करेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको रन तो करना ही पड़ेगा। sample1.sh हम grep कमांड यूज़ करेंगे इसमें। पहले हमने क्या किया, grep कमांड की इसमें यूज़ की, एज अ कमांड में यूज़ किया है हमने। तो हम क्या करेंगे, एज अ पहले इसमें शेल स्क्रिप्ट फाइल के साथ grep कमांड यूज़ करेंगे। ओके, तो grep sample1.sh पाइप तो वो लगाना ही पड़ेगा, उससे नहीं होगा। फिर grep कमांड। तो मुझे क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था,
जो कि मैंने 1 2 3 11 12 13, मुझे क्या करना है प्रिंट, बस स्टार्टिंग में 1 है वही मुझे नंबर प्रिंट होने चाहिए। ओके, दैट इज़ माई रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, ग्रेप 1, ओके, देन हिट एंटर। ओके, देखो जिसमें स्टार्टिंग में 1 है वो सब नंबर से आप ही प्रिंट हो गए। हमने ये भी सीख लिया। तो हम अब एक बेसिक स्क्रिप्ट देखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का भी। तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, क्या नाम देंगे, एडिशन ही नाम देंगे उसको। देन वी एडिटर एडिशन डॉट एस एच, एंटर, ये कर दिया। देन इको एंटर फर्स्ट नंबर, तो इसको रीड करना पड़ता है वेरिएबल में, तो रीड यूज किया, रीड ए, देन इको एंटर सेकंड नंबर, इसको रीड बी में किया। ओके, तो कौन से तो वेरिएबल में सेव होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, सम लिखते हैं, सम इक्वल टू ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसमें करेंगे लॉजिक, लिखेंगे लॉजिक क्या है, सिंपल ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, इको सम इज डॉलर सम। ओके, सिंपल स्क्रिप्ट, द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अच्छे दिखने के लिए हम इधर भी इको प्रिंट एक लगा देते हैं, अच्छा दिखेगा। इको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो हम इसको सेव करेंगे, एक्सकेप कोलन डब्ल्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो इसे भी मुझे परमिशन देनी पड़ी, chmod 777 एडिशन डॉट एस एच। ओके, तो हम इसको रन करेंगे, डॉट स्लैश एडिशन डॉट एस एच। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हमें क्या बोल रहे हैं, तो आपको फर्स्ट नंबर पुट करना है, तो हम क्या करेंगे 12। ओके, देन एंटर द सेकंड नंबर 18, तो आउटपुट आना चाहिए 30, या आउटपुट इज 30, सम इज 30। ये देखो, ये भी स्क्रिप्ट हो गया हमारी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ये तो बिल्कुल ही ईजी थी। तो several shells for Linux system: bash, first bourne again shell, second shell accept human readable commands from user and convert them to the something which the kernel understand. It divide the 2 categories, command line shell and graphical shell. Third is CSH, that is C shell, that is the C programming language. KSH is the corn shell, it base for the POSIX shell standard specialization. Next section, why do we need shell scripts? So it needs to avoid the repetitive work and automation. So, system admin use shell script for routine backups. Third is some use for system monitoring.
डे 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द सेल, ये भी हमने देखा है, डिटेल में पढ़ा है। व्हाट इज सेल स्क्रिप्टिंग, व्हाई यूज द सेल स्क्रिप्ट, तो कुछ हमने सेल स्क्रिप्ट भी देखे। नेक्स्ट स्लैश हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क बीन एस एच वर्सेस शीवैंग बीन डैश, इसका डिफरेंस भी हमने देखा है। थर्ड क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ शेल स्क्रिप्ट। फोर्थ क्वेश्चन डिसएडवांटेजेस ऑफ शेल स्क्रिप्ट, ये दोनों भी हमने पढ़े हैं। तो एडवांटेज में क्या आता है, क्विक स्टार्ट, इंटरैक्टिव डिबगिंग, तो उसमें रियल वर्ल्ड टाइम सिनेरियोज में आप बता सकते हो, एग्जांपल में ऑटोमेटिंग बैकअप्स, स्क्रिप्ट बैकअप डॉट sh, description, the script creates the backup of specified directory and store them into designated location. Some use for monitoring and altering, some are data processing analysis, and some are the backup and disaster recovery. तो इस सब का स्क्रिप्ट्स होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन शेल कमांड्स, ये भी हमने डिटेल में देखे आज। देन व्हाट इज अ ग्रेप कमांड, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। व्हाट इज अ क्रॉन जॉब, तो हमें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्हाट इज अ क्रॉन जॉब। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू चेक नोड हेल्थ, ये भी हमने इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी है। तो आज हमने डिटेल में देखा है व्हाट इज द शेल स्क्रिप्ट और कुछ बेसिक शेल स्क्रिप्ट्स डिटेल्स में पढ़े हैं। सो गाइज, ये था शेल स्क्रिप्ट एंड एग्जांपल्स जो डेवऑप्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट डे हम इन स्क्रिप्ट्स को SSH इंटू AWS EC2 प्लस लिनक्स, जो कि एक रियल क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे यूजिंग SSH, दैट इज सिक्योर शेल। मतलब जो कमांड्स हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिस किए थे, तो उन्हें रियल सर्वर पे रन करेंगे। स्टे ट्यून, एंड जो आज हमने लर्न किया है उसका प्रैक्टिकल जरूर करना। सो गुड बाय गाइज एंड थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।